Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Ms. Hajra Saeed and welcome all of you in your maths online class. Hope all of you are fine and enjoying good health. Congratulations to all of you on being promoted to the second year. But now, this coming year of studies is going to be very crucial for educational career as your FSC result is going to be totally based on the efforts of this year. So, muster up your courage, set your high goals, and start doing effort for getting the best possible grades. First of all, we discuss the contents of your book. Your second year mathematics book has 7 chapters. Chapter 1, Functions and Limits. Chapter 2, Differentiation. Chapter 3, Integration. Chapter 4, Introduction to Analytical Geometry. Chapter 5, Linear Equations. Chapter 6, Conic Sections. Chapter 7, Vectors. You must be well aware of the concept of functions and vectors, but there are some concepts that are totally new. डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो हमें 9-10 में बिल्कुल नहीं होता. ये आपके न्यू कंसेप्ट्स हैं. ये इंशाल्लाह हम यहीं पे आप एफएससी में लर्न करते हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जो पेपर का मेजर पोर्शन है वो इन्हीं 2 चैप्टर्स से कवर होता है. यानी चैप्टर 2 and 3 डिफ्रेंसीशन एंड इंटीग्रेशन मेक मोर देन 50% ऑफ योर पेपर. तो इंशाल्लाह इस पे भी हम फोकस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द paper pattern. You are already well aware of the paper pattern. It is exactly the same as told you in your first year class. आपका पेपर पैटर्न बिल्कुल वही है जो आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया था. आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा एंड यू विल बी गिवन 3 hours टू अटेम्प्ट दिस पेपर. Question number 1 would be of MCQs. There will be 20 MCQs and you will be given 30 minutes to attempt these. Next in subjective paper in section 1, there will be 3 parts of short questions. In question number 2 and 3, you will have to attempt 8 questions out of 12. But in the short questions, question number 4 of short questions, you will have to attempt 9 questions out of 13. And in section 2 of section 2 of subjective paper आपके पास 5 long questions होंगे and you will have to attempt 3 long questions out of these 5. बहुत ज़्यादा डिटेल स्कीम आपको मैंने नहीं बताई है इस वजह से कि समटाइम्स अगर वो एंड पे चेंज हो जाए तो फिर बच्चे परेशान बहुत होते हैं. तो वैसे साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको साथ साथ मेंशन करती जाऊँगी. Let's start our first chapter, Functions and Limits. This chapter is important for short questions as well as long questions. In this chapter, today we will be learning concept of a function, definition of function, domain, range, notation and values of a function, vertical line test. And after getting the knowledge of the above mentioned articles, we will be able to solve question number 1, 2 and 3 of exercise 1.1 inshallah. Let's see what is a function, from where the concept of function begins. The term function was first described by a German mathematician Leibniz to describe the dependence of one quantity on another. जो फंक्शन की टर्म है ये सबसे पहले लिबनिज ने प्रपोज की थी. ही यूज दिस टर्म टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर. सो वी कैन से दैट फंक्शंस बेसिकली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन two variable quantities. Let us illustrate it through an example. Suppose we have two squares, one having side 2 cm and the other having side 5 cm. The square having side 2 cm will be having area 4 cm square, and the square having side 5 cm will be having area 25 cm square. Here we have seen
that the square with smaller side has smaller area and the square with larger side has larger area. यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो स्क्वायर जिस स्क्वायर की साइड छोटी है उसका एरिया भी कम है और जिस स्क्वायर की साइड बड़ी है उसका एरिया भी ज़्यादा है. यानी हम कह सकते हैं कि एरिया असल में किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया आपकी साइड की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है. और अगर एरिया साइड की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ साइड. We can say that A is a function of x because it is depending on that. A is a function of x. We can define function as it is like an input machine that it is like a machine that has an input and an output. हम function के बारे में यूँ भी कह सकते हैं कि एक कंप्यूटिंग मशीन है जिसको हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, उस पर वर्कआउट करता है और फिर हमें क्या मिलता है, then we get an output and definitely the output will be depending on the input. So function can be expressed as a computing machine also. Here we can say that we have three main parts of a function. Number one, the input. Number two, the relationship. And number three, the output. We can take a very simple example to explain it. For example, मैं आपको कह देती हूँ कि मेरे पास एक रिलेशनशिप है, मैंने बहुत सिंपल रिलेशनशिप ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 2. इनपुट्स हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेंगे. व्हेन आई गिव द इनपुट 0 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2 आई गेट द आउटपुट 0. जब हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा 0. जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल बी गेटिंग 2. जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल बी गेटिंग 4. यानी द आउटपुट इज़ बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द इनपुट एंड इस तरह से सोन ये हमें मिलता जाएगा. सो here can you guess any value of input if I say to you for an input of 50 what would be the output? Yes, now you can tell it. It would be 100. In this figure there are two pictures for you to compare. Here you can see that in the first animation the cartoon is sleeping, he seems to be lazy, and in the second picture the cartoon seems to be very active, he seems to be very efficient and doing his work very actively. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला कार्टून है उसका ग्राफ नीचे को जा रहा है और सेकंड वाला कार्टून जो है उसका ग्राफ ऊपर को जा रहा है. तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो सक्सेस है वो क्या है, आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करती है. वी कैन से दैट योर सक्सेस इज़ अ फंक्शन ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. जो जितने हार्ड वर्क करेगा, जितनी डिटर्मिनेशन से करेगा उसका ग्राफ उतना ही ऊपर जाएगा और जो इस चीज़ में थोड़ा नेग्लिजेंट होगा उसका ग्राफ नीचे आएगा. सो इट इज़ अ सिंपल लेसन फॉर यू हेयर. Your success is a function of your hard work and determination. Mathematically and finally we can define a function as a function is a rule or correspondence relating two sets in such a way that each element in the first set corresponds to only one element of the सेकेंड सेट. यानी फंक्शन एक ऐसा रूल है जो दो सेट्स को इस तरीके से रिलेट करेगा कि आपके फर्स्ट सेट का जो एक एलिमेंट है, अगर हम इसको सेट्स वाइज अब प्रॉपर डिफाइन करते हैं, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो आपका फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट सेकंड सेट के सिर्फ एक ही एलिमेंट से करस्पॉन्ड कर रहा होगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट के दो एलिमेंट से करस्पॉन्ड कर रहा हो. या हम ये कह सकते हैं कि एक इनपुट के लिए हमेशा हमें एक ही आउटपुट मिलेगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कहें कि एक इनपुट है और हमें दो आउटपुट्स मिल रहे हैं. The definition of function can be summarized in the form of two rules. It must work for every possible input value and you can have only one relationship for each input value. Let us illustrate it through an example once more.
For example, we have the set A containing elements 1, 2, 3, 4, 5 and the set B having elements 2, 4, 6, 8 and 10. अब अगर हमने इसको चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम एक तो ये देखेंगे कि जो हमारा सेट ए है उसके सारे एलिमेंट्स सेट बी के साथ कहीं ना कहीं क्रॉसपॉन्ड होने चाहिए, और दूसरा हमने ये देखना है कि जो सेट ए का एलिमेंट है वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए इन द सेट बी. तो देखते हैं कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, देन इट विल बी अ फंक्शन. 1 is corresponding to 4, 2 is corresponding to 2, 4 is corresponding to 8, 5 is associated with 6 and 3 is associated with 10. तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं सेट बी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं. वी कैन से दैट ऑल एक्स आर असाइंड. And the second thing we have noticed that no x has more than one y assigned. यानी x की एक वैल्यू के साथ y की एक ही वैल्यू एसोसिएटेड है. कहीं पे ऐसा नहीं है कि x की एक वैल्यू के साथ y की दो वैल्यूज आ रही हूँ. So our second condition is also satisfied. This is a function because it meets our both conditions. देयर इज़ अनदर एग्ज़ाम्पल फॉर यू. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह देते हैं कि मैंने आपके पास स्टूडेंट्स लिए हैं 5. इन सेट ए वी हैव 5 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 1, 2, 3 एंड स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5. इन सेट बी आई हैव प्लेस्ड द ग्रेड्स, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड ई एंड ग्रेड डी. मैं आपको ये कहती हूँ कि स्टूडेंट 1 जो है उसका सी ग्रेड आया है, जो सेकेंड स्टूडेंट है स्टूडेंट 2 उसका ए ग्रेड आया है, स्टूडेंट 3 का भी ए ग्रेड आया है, स्टूडेंट 4 का बी ग्रेड आया है और स्टूडेंट 5 का डी ग्रेड आया है. तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक वक्त में कि स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 का ए ग्रेड आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूँ कि स्टूडेंट 2 का एक वक्त में ए ग्रेड भी और एक वक्त में उसका ई ग्रेड भी है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हमारी जो फंक्शन की दोनों कंडीशंस हैं वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही हैं. दो इन द सेकेंड सेट ई ऐसा है कि वो किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा, बट स्टिल इट इज़ अ फंक्शन बिकॉज हमारी जो दोनों कंडीशंस हैं वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही हैं. ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर असाइंड एंड देयर इज़ नो रेपिटेशन इन द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट. नेक्स्ट कम टू द फंक्शन नोटेशन. फंक्शन की जो नोटेशन है वो हम यूज़ करते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड इट इज़ अ क्लासिकल वे सजेस्टेड बाय आइलर. दिस इज द फंक्शन नोटेशन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स where y is the output value, f is the function name and x is the input. एफ़ जो है वो फंक्शन नेम को शो करता है. ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने एफ़ ही लेना है. यू कैन टेक हेयर जी एच एज वेल, और हम यहाँ पे एफ़ भी ले सकते हैं, जी भी ले सकते हैं, एच भी ले सकते हैं. और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एफ़ और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि फंक्शन वर्ड एफ़ से स्टार्ट होता है, इसलिए अमूमन हम क्या करते हैं इसको एफ़ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. वाई इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स.